Welcome back. Today in this video lecture, you will learn how to import SketchUp model to PVSys and run simulation. And for that, I am using the project of ground mount PV system in which I am using 1724 PV modules of 580 watt peak project capacity. And the tilt angle I am using here is 24 degrees. That is the optimal tilt angle according to site. And the field is 180 degrees azimuth, means the field is on due south, and the tilt angle is 24 degrees. Total count of PV modules 1724, and the project capacity here I am using 1 megawatt peak. So this one is the project summary of overall video lecture. Now I am exporting my SketchUp to PVSys, and how I will do that? Go to File, click on Export, and enter on 3D model. So here you can see save as type Collada. So Collada file is the type of that file which I will later import in my PVSys. So just provide it path where I will save it, and here I will save Collada file. Now go to PVSys. I have already uploaded number of video lectures on PVSys, and side by side I am uploading video lectures on AutoCAD, PVSol Premium, SketchUp, Helioscope. So see that and comment me if you find that videos informative. So first of all, I will define my project design and simulation, means either on grid, grid tied, or standalone, or pumping. So here I am click on grid connected. So my simulation is based on grid connected on grid system. So click on new file, and here you will provide the location coordinates of that site. So click on geographical site, and this one is my this one is my location. So how to import new location? So just click on in new. यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर मेरे पास पहले से डेटाबेस में कोई लोकेशन ऐड नहीं है, तो तब मैंने कैसे अपनी लोकेशन को ऐड करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, लोकेलिटी पे जाके जस्ट इधर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे, और आपकी वो जो स्पेसिफिक साइट आ जाएगी जिसकी आप पीवीसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लोकेशन ऐड कर लिया, और ये मेरे पास जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो लोकेलिटी पे जाके अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्लेस करूंगा, तो मेरे पास ये विंडो पॉपअप हो जाएगी, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें मेरे पास डिफरेंट वेदर डाटा इनपुट्स है, लाइक आई कैन यूज मीडियोनो 8.1 और नासा एसएसई पीवीजीआईएस और एनआरईएल सोलकास्ट सोलर एनीवेयर। तो ये सारे मेरे वेदर डाटा इनपुट्स है, जिसकी बेस पे मुझे इस डाटा को मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा। जब मैं डाटा को इंपोर्ट करूंगा, मीन्स के आई एम इंपोर्टिंग वीडियो ऑफ 8.1 वेदर डाटा इंपोर्ट, so what you will get from here, GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, मीन्स के लेट्स सपोज मेरे पास अगर 1 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है, उसको हम मेजर करते हैं ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लिंकी टर्बिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स मैं उस लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को जस्ट प्लेस करने से गेट कर लूंगा, एंड देन सिंपली मैं इस पे ओके करूंगा। अच्छा, उससे पहले आप देखें कि इधर हेयर I can see my latitude, longitude, altitude, time zone, and this one is the sun path, which is plotted azimuth versus sun height. So just simply click on OK,
and here my location is added in my database. Back to project. Okay, so here I will define my project setting albedo. So depend on field, you can choose मीन्स आपकी जो पैनल्स प्लेसमेंट है वो ग्रास पे है, फ्रेश ग्रास पे है, वेट स्नो पे है, ड्राई एसफॉल्ट पे है, वेट एसफॉल्ट पे है, कंक्रीट पे, उसके अगेंस्ट आपको एल्बिडो की वैल्यू मिलेगी. सो व्हाट डू यू मीन बाय एल्बिडो? एल्बिडो इज द रिफ्लेक्टिविटी, मतलब जो सूरज की तरफ से जो इरेडियंस आ रही है, मीन्स रेडिएशंस आ रही है, तो ये क्या करता है कि जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है बेसिकली उसको हम एल्बिडो में मेजर करते हैं. So 0.10, here I am set my albedo for all the months. Okay, save, save it, and here you will define your orientation. So my orientation is 24 degrees tilt and 0 degree azimuth. So it depends whether you are in northern hemisphere or southern hemisphere. So if you are in southern hemisphere, you will put 180-degree here, and I am from the northeast region, means I am lying Pakistan and I am in northeast region, so I will put here 0 degrees. 0 degree means a panels are facing towards true south. So just simply click on it, save it. Now here you will define your system, your panels, panel brand, panel count, inverter brand, inverter count, and here you will define the number of PV modules and the strings associated with them. So first of all, I will choose Canadian Solar as a PV module, and here I am using the project capacity for the PV module 580 watt peak, uh, and that's model is CS6W580 AG. AG means albedo gain, means the solar PV module that I am using here is bifacial module. So here I am activating the bifaciality for that solar PV module. अच्छा, इसमें मसला भी है कि हमने इसको जो अनलिमिटेड शेड्स है उस पे जब हम सिमुलेट, जितने भी पीवी बाइफिशियल पीवी मॉड्यूल्स की सिमुलेशन होती है वो अनलिमिटेड शेड्स पे परफॉर्म की जाती है, बट हेयर आई एम वर्किंग ऑन फिक्स टिल्टेड प्लेन. तो अगर मुझे बाइफिशियल मॉड्यूल की सिमुलेशन परफॉर्म करनी है तो मुझे इस पे बाइफिशियल मॉड्यूल की सिमुलेशन के लिए मुझे अनलिमिटेड शेड्स पे अपने पीवी सिस्टम को सिमुलेट करना होगा. तो जस्ट फॉर द टाइम बिंग क्लिक ऑन डोंट यूज दिस इन सिमुलेशन. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फिक्स टिल्टेड प्लेन और इसके साथ साथ अनलिमिटेड शेड्स पे कैसे वर्किंग करते हैं, क्योंकि उस पर हमने पिच भी डिफाइन करनी है, इंटरवल स्पेसिंग भी डिफाइन करनी है, तब हम बाइफिशियल मॉड्यूल को लेके आएंगे. अभी हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है कि हमने स्केचअप मॉडल को, we want to import our SketchUp 3D model into PVSys and run the simulation. So here I am using Huawei inverter 115 kTL. So here I will define my string size and number of strings. So if I am using 95 strings of 95 strings of 16 PV modules and 12 strings of 17 PV modules, then I will get 1724 PV modules for the project capacity of 1 megawatt. So here you can see overload losses are much more. So
I will define the inverters based on MPPTs. So click on use multi MPPT feature, and here you will define. So for Sun 2000 is grid tied solar inverter 115 KTL M2. The number of MPPTs here are 10. Inverter with 10 MPPTs. And for the project capacity of 1 megawatt peak, I am using 7 to 8 inverters of 115 kVA. Means if I am using 68 MPPTs associated with 7 on-grid inverters, then I will get the P norm ratio और load ratio और DC by AC ratio. इस पर डिटेल मेरा वीडियो लेक्चर है, वो आप जरूर देखिएगा. DC by AC रेशियो में मैंने बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डीसी बाई एसी रेशियो, जिसको हम लोड रेशियो या पीनो रेशियो या इन्वर्टर साइजिंग फैक्टर कहते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, और हम इसको कैसे अपनी सोलर डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज में, और जब हम यूनिट्स को कमिट करते हैं कि इतनी मेरी एनुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए, नॉर्मलाइज प्रोडक्शन होनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रोडक्शन होनी चाहिए, तब इसका क्या रोल है डीसी बाई एसी रेशियो का. So it means कि अगर मुझे, if I want to achieve the project capacity of 1 megawatt by using PV module 580 watt peak, then I will have to use 8 on-grid inverters of size 115 kVA, and for that I can achieve my load ratio, means inverter sizing factor, that is 1.087. Okay, just click on it. सो हेयर विल, इस पे मेरा पूरा एक यूट्यूब का डिटेल्ड सेक्शन है, जिस जो मैंने बनाना है हर एक पैरामीटर पे. जो मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी पे ही होगी. इस हर पैरामीटर को डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और इसको यूज करते हुए हम अपने प्रोडक्शन को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. सो थर्मल पैरामीटर. सो हेयर आई एम यूजिंग ground mount PV system in which I am using Fortive galvanized iron structure with 24 degrees tilt angle and 180 degrees true south, means zero azimuth, and the support here I am using, that is concrete piling. So silicone pre-mounted modules with air circulation. Pre-mounted modules with air circulation. This tab is used for elevated structures, customized parking sheds, ground structures, and air cross structures. Inverted beams, north-south or east-west inverted beams. Ohmiclosis. It lies 1.5 to 2%, or in some cases 2 to 2.5 to 3%. So for silicon diode, the voltage drop is 0.7, and for germanium diode 0.3 volts. So I am click on default, means 0.7 voltage for the silicon diode. And for incorporating AC circuit losses, I will check on this tab, and here I am entering 10 meters length, means length inverter to injection. Injection point here is main AC field combiner box, or you can say solar DB or LV panel. और अगर मुझे क्लाइंट की एलटी से डायरेक्ट पैचिंग करनी है, मीन्स टर्मिनेशन क्लाइंट की एलटी के मेन ब्रेकर पे है, तो तब मैं हर एलवी पैनल यूज नहीं करूंगा. तब डायरेक्ट जो सा इन्वर्टर टू, मीन्स के जो मेरी पैचिंग होगी मेन एसी केबल्स की, वो डायरेक्ट क्लाइंट के मेन एसी ब्रेकर से होगी, अदरवाइज मेरा एलवी पैनल बीच में आएगा. So for 115 kTL, I can use either 70 mm square or 95 mm square. So if you are installing your inverters in indoor condition, then 70 mm square is enough. But if you choose outdoor platform for inverter installation, then just suggestion, use 95 mm square.
even or even or not copper XLPE PVC or copper PVC by PVC. तो here copper conductor. और इसमें एक वीडियो लेक्चर मेरा इस पे होगा कि इफ यू आर वर्किंग विद ट्रांसफार्मर मीन्स कि आपका जो सिस्टम की पैचिंग है, टर्मिनेशन है यानी इंजेक्शन पॉइंट, वो 11 केवी पे होता है, यूटिलिटी स्केल पे है, तो तब आप ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को भी इंकॉर्पोरेट करते हैं। Then you incorporate copper losses and iron losses associated with the transformer using in the project. Here module quality loss, that is 1%. अभी हमारा मेन कंसर्न जो है वो डिटेल लॉसेस को डिस्कस करना नहीं है, वो जस्ट 3D को अपने स्केचअप मॉडल को इंपोर्ट करना है पीवीसी में। मेरे जो अगले वीडियो लेक्चर्स होंगे वो इन पे डिटेल डिस्कशन होगी इन टैब्स पे। एंड 3% एजिंग का भी मैं आपको डिटेल से अलग वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। 7 days एनुअली लेट्स वो सिस्टम फेलियर या मेंटेनेंस के कंसर्न्स हैं, तब आप 7 days पर ये स्पेक्ट्रल करेक्शन होते हैं। अब जो मेन वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था कि हमने अपने स्केचअप मॉडल को भी तो इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप नियर शेडिंग पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रक्शन और पर्सपेक्टिव पे जाके अपने मॉडल को इधर इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये आपका मॉडल जो है वो इंपोर्ट हो गया। So just click on apply 180-degree rotation and select material which describe baby faces. So A is the color. इसके लिए हम जाते हैं दोबारा, इसको क्लोज करते हैं और अपने स्केचअप मॉडल पे जाते हैं। तो आप स्केचअप मॉडल में टेक्सचर को भी यूज कर सकते हैं, कलर मॉडल भी यूज कर सकते हैं। और ये जो रेड कलर हेयर आई एम यूजिंग विच इंडिकेट्स द सिस्टम एक्सटेंशन ऑफ माय क्लाइंट, तो इसलिए मैंने रेड कलर से कुछ पैनल्स को शो किया हुआ है, और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट कैपेसिटी थी उनको ब्लू पैनल से किया था, जस्ट इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, मीन्स डिस्टिंग्विश करने के लिए कि मैं जो मेरे रेड पैनल्स है वो मेरी एक्सटेंशन प्लान है, और जो मेरे ब्लू पैनल्स है वो ऑलरेडी इंस्टॉल प्रोजेक्ट कैपेसिटी है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये पैनल का टेक्सचर वो नहीं है जो एक होता है स्टैंडर्ड, बल्कि ये रेड कलर, तो जस्ट क्लाइंट को कन्वे करने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ। मेरा जो कलर है A05 है। तो हेयर इज कलर A06 एंड C05। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक दफ़ा कलर अपना कंफर्म कर लूँ कि ये मेरा जो कलर है A05 है या C06 है।
जो भी आपने कलर टेक्सचर यूज़ करना है वो आपके जेब में होना चाहिए, साइड नोट पे लिखा होना चाहिए। अदरवाइज ये थोड़ा सा टाइम लगता होता है कि आपका जो कलर कोड है एग्जैक्टली आपने पैनल्स का वही टेक्सचर उसको डिफाइन करना और उसने उसी को ही एज अ पीवी मॉड्यूल मान लेना। ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट। सो देखो, अब ये पैनल्स किस तरफ दिखाए जा रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ये जो पीवी सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली हम ये लाई कर रहा था साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसके लिए मुझे जस्ट इधर अप्लाई करना है 180 डिग्री। तो ये कॉमन मिस्टेक थी जो हम कर रहे थे कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ये देखा, मैंने इसको क्लिक किया, कलर को डिफाइन किया एज अ पीवी मॉड्यूल एंड दिस। तो ये मेरी फील्ड आ गई। और अब देखें ये पैनल जो से हैं वो 180 डिग्री साउथ है। अच्छा, आप इसको रियलिस्टिक या टेक्निकल व्यू से भी मतलब रेंडर्ड बेस भी देख सकते हैं। ओके, सो क्लोज सीन एंड क्लिक ऑन टेबल फॉर कैलकुलेटिंग द शेडिंग फैक्टर्स। So here you can see tilt is 24 degrees and azimuth is 0 degrees. तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ओके, सो नाउ it is okay and ready for simulation. तो ये चीज़ आपने देखी होगी कि कैसे हम स्केचअप मॉडल को इंपोर्ट करते हैं अपने पीवी सिस्टम में और सिमुलेशन को परफॉर्म करते हैं। सो मेरे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे वो डिटेल लॉसेस के हर टैब को थ्योरेटिकली और सिमुलेशन बेस्ड डिस्कशन पे होंगे। तो अगर आप रिपोर्ट देखें तो रिपोर्ट में 3D सिमुलेशन परफॉर्म हुई है। सबसे पहले ये देखें इसमें project capacity here is my 1 megawatt means 1000 kilowatt peak and project summary result summary में आपको annual energy specific production और performance ratio मिल जाएंगे। और जो पीवी अरे करेक्टरिस्टिक है उसमें आपको पैनल्स और इन्वर्टर्स का डाटा मिल जाएगा। ये सारे डिटेल लॉसेस हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। और ये लॉस डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें मुझे कहीं 3D नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए आप रिपोर्ट ऑप्शंस में जाकर नियर शेडिंग को चेक कर देंगे। आई थिंक सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो रहा है। ये देखो, ये ले आपका ये सिस्टम आ गया और ये उसके आइसो शेडिंग डायग्राम, इसको डिटेल से देखेंगे जब डिटेल लॉसेस को हम स्टडी करेंगे। Well, so thanks for watching the video lecture, and for the upcoming video lectures, you will working detail on, you will find the detailed experience on PVCs, Helioso, AutoCAD, some premium SketchUp, hosting BioQ। हम डिटेल से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर जो इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।